Okay, good evening everyone. Bonsoir. So starting with chapter number 2, let's see what is the name of the chapter 2. Voyage मतलब trip होता है, trip. Okay, trip. So chapter number 2, we are on page number 46. Moving forward, page number 47, they have given us a suitcase, एक bag पूरा दिया हुआ है. So let's start. सबसे पहले marcher. Look, can you see the verb marcher over there? चलो marcher का मतलब students वहाँ पे क्या होता है? To walk. Okay. वहाँ के भी लिख लो. Marcher is the verb to walk. चलो. Voyager. Tell me what's the meaning of voyager? To travel. To travel. Travel. These are all verbs given to us. Okay. Partir. Tell me what's the verb to partir? To go. To leave. To leave. To सारे depart. बच्चों को पेंसिल से वहां से लिखना है. You have got your textbook. Okay. Just 1 second. Huh? Okay. So after that, students, we have conduire. Tell me what's the meaning of conduire? To drive. Next is pedale. Pedale means to move होता है. To move. चलो स्टूडेंट्स ये जितने भी दिए सारे verbs है. Okay. These are ER ending verbs. Do you remember the endings of ER ending verbs? Can you, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. ENT. Very good. चलो. Okay. ES, ONS, EZ, ENT. Now coming on the right hand side students, यहाँ पे हमको क्या दिया है? Nouns दिए हुए. सबसे पहले museum. Museum मतलब students क्या होता है? Museum होगा. Museum मतलब museum. वहाँ पे लिख लो masculine noun है. Museum. Museum. Next is souvenir. Souvenir मतलब students again a masculine noun जिसका मतलब होता है memory. Statue has to be a statue. The same thing in English. Statue. Next is chateau. Tell me what's the meaning of chateau? Castle. Again a castle is a masculine noun. ये सारे words हमने 11th में काफी सारे पढ़े हुए हैं. Jardin. What's the meaning of jardin? Garden. Jardin means garden होता है बच्चे लोग. So all these 5 words are noun. Museum मतलब museum, souvenir मतलब memory, statue, castle और garden. So statue feminine है. No, all are masculine noun. Okay. Next is magnificent. Okay, so students अभी हम लोग को जो दिया है वो सारे क्या है? Adjectives है. क्या दिया है students? Adjectives. Magnificent का मतलब क्या होता है? It is magnificent, obviously. Elegant has to be elegant. है ना? Elegant मतलब pretty होता है. Elegant मतलब she is looking so elegant, pretty. Yeah. And celebrate has to be famous. Okay. Famous. ये सारे क्या है students? Adjectives हैं. Luxurious. Spelling देखना एकदम. Luxurious. Is my spelling right in English? Luxurious. हाँ सर. Okay. And splendid again has to be splendid. It's marvelous, splendid. या वो भी बोल सकते हैं. चलो. Next is after that. Now students, what they have given is adverb. Last के जो दो लाइन, last का जो एक लाइन है students, strong, kill more. वहाँ पे लिखो peacefully adverb है. Peacefully adverb. Okay. And last is students with students अभी तुम लोग ध्यान रखना with एक adjective भी होता है और adverb भी होता है. क्या याद रखेंगे? with is the same word जिसका नाम वो adjective भी होता है और adverb भी होता है. Okay. और with का मतलब students या तो quick या तो quickly. दोनों वर्ड सेम है फ्रेंच में. quick या quickly. ये तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा. हमको सेंटेंस से पता चल जाएगा. सेंटेंस को रीड कर पता चल जाएगा कि वहां पे एडजेक्टिव चल रहा है या एडवर्ब चल रहा है. इज दैट ओके? चलो. एनी डाउट स्टूडेंट्स सो फार? नो डाउट? आर यू गाइस श्योर? चलो ठीक है. चलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस थिंग्स. एक मिनट. Who's writing? सर मैं देव.
Okay, Dev. Be fast. I'm going to wait 1 minute for you. हो गया सर. चलो ठीक है. So students, अभी मैं रब कर रहा हूँ सब चीजों को. Okay, moving forward. स्टूडेंट्स, ये जो वोकैबुलरीज है ना, ये वोकैबुलरीज को रीड करके क्या लग रहा है कि ये चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है? चैप्टर का नाम सुनकर और वोकैबुलरी सुनकर क्या लग रहा है चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है? ट्रैवलिंग वगैरह होगा, घूमना फिरना होने वाला है. ओके, बिकॉज सब वोकैबुलरीज लग के तो यही लग रहा था कि घूमना फिरना वगैरह होने वाला है. अच्छा, लास्ट इज बोन वोयाज. वी स्किप्ड वन वर्ड. बोन वोयाज मतलब हैप्पी जर्नी. ये हमने 11th में पढ़ा था. बोन वोयाज, हैप्पी जर्नी. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. ईरा देशमुख. तो स्टूडेंट्स, ईरा देशमुख कुछ बोलने वाली है इसके अंदर. प्रेत आ वोयाजर, toujours. तो रेडी टू ट्रैवल, ऑलवेज. toujours मतलब क्या होता है बच्चे लोग? ऑलवेज. चलो, तो प्रेत आ वोयाजर, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? रेडी टू ट्रैवल, डॉट 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 डॉट, ऑलवेज. हमेशा. यार, घूमने फिरने के लिए कौन ही मना करता है ब्रो. चलो, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. मैं ये सारा यहाँ पर लिखने वाला हूँ, स्टार्ट करूंगा. ओके, सो द ऋतु मुंबई आपरे यून समय ना पारी. सो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? सो रिटर्निंग टू मुंबई आफ्टर ए वीक एट पेरिस. टू मुंबई आफ्टर अ ओके, सो रिटर्न टू मुंबई आफ्टर अ वीक एट पेरिस. तो स्टूडेंट्स, ये जो ईरा देशमुख है वो पेरिस घूमकर आई है. अब वो कहां पर आ गई? वापस मुंबई आ गई है. अब वो क्या करेगी? स्टोरी बताने वाली है. पेरिस की काफी ज्यादा तारीफ करने वाली है, सारी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली है. नो प्रॉब्लम. अपन को कोई पर्सनल क्रश तो है नहीं पेरिस के साथ, तो चलो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है. टॉन द शोज आर पार्टाज है. टॉन मतलब ढेर सारी चीजें हैं. ओके, टॉन मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मेनी थिंग्स टू शेयर. आप कुछ भी लिखो. लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर. Many things to share. Je commence avec les souvenirs les plus précieux. And I am starting. तो स्टूडेंट्स, मैं शुरू कैसे करूंगा? देखो, मेरे पास काफी सारी चीजें बताने के लिए है, तो मैं उन चीजों से शुरू करूंगा जो सबसे प्रेशियस मेमोरीज थी. ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट प्रेशियस. तुम लोग को प्रेशियस वर्ड सुन के कुछ याद आता है क्या? प्रेशियस. किसने लॉर्ड ऑफ रिंग्स देखा है? कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? हाँ, कोई बहुत सही मूवी. आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट प्रेशियस मेमोरीज. आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट प्रेशियस मेमोरीज. फुल स्टॉप. चलो, तो स्टूडेंट्स, ईरा अब क्या करने वाली है? ईरा अपनी कहानी बताने वाली है, पेरिस जहां पर घूमकर आई थी. एंड शी इज गोइंग टू नरेट अस फ्यू स्टोरीज, एंड द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी the most memorable one, and then the least, then the middle, and the least memorable one. Okay, so अमिताभ बच्चन बोलता है कि हम उस सीक्वेंस में जाएंगे. मुझे पता है वो कौन में करोड़पति बोलता था. हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हम चलो जाने सबसे इंपॉर्टेंट से लेके नीचे तक के डर तक वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे. चलो चलो बच्चे लोग बताओ, सबसे फर्स्ट कौन सा टॉपिक है उसके पास? एंड ला टूर ईफेल का मतलब बच्चे लोग क्या होता है? आईफिल टावर. तो आप लोगों को चाहिए तो आप वहां पे लिख लो आईफिल टावर. ला टूर ईफेल. मस्त एकदम. मेरे को प्रोनाउंस करने में बहुत अच्छा लगा. ला टूर ईफेल, ला टूर ईफेल. On sait que c'est le monument le plus connu du monde. So one knows. One knows. Students, ये एक नया वर्ब है, इसलिए शायद आपको नहीं पता होगा. One knows that this is the most famous monument of the world. Students, ये वाला सेंटेंस रीड करके मुझे बताओ कौन सा ग्रामर टॉपिक क्लिक हो रहा है यहाँ पर? One knows that this is the most famous monument of the world. Which grammar topic is being used in this particular sentence? Most famous monument. Comparative superlative सुना है कभी? Comparative degree, superlative degree. तो ये क्या हो रहा है? Superlative degree है ना. अगर मैं बोलूंगा that
यश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया. अगर कंपैरेटिव यश इज मोर इंटेलिजेंट देन पक्षाल, तो ये क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री हो गया. राइट तो हमने पढ़ा है इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर भी हम कौन सा ग्रामर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ने वाले हैं. देखो इसके ऊपर भी एक सेंटेंस आया था, आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट प्रेशियस मेमोरीज, तो ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है. तो आप लोग को टेक्स्ट रीड करके एक कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए कि इसके अंदर ट्रैवलिंग के बारे में आने वाला है, कौन से ग्रामर टॉपिक्स यूज होने वाले हैं, वो रीड करके आप लोग को एक आइडिया बैठ जाना चाहिए मन के अंदर. इज दैट ओके? चलो. सो आईफिल टावर के बारे में क्या बोला सबसे पहले, वन नोज दैट इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड. बहुत ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट है बच्चे लोग ये वर्ल्ड का. चलो उसके बाद क्या लिखेंगे, नू सॉ मॉन्टे टूट ऑन हॉट, सो वी क्लाइम्ड. स्टूडेंट्स इज द पास्ट टेंस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. वी क्लाइम्ड. ओके. टूट ऑन हॉट ऑसन, सो वी क्लाइम्ड अप by lift. ऑसन से मतलब स्टूडेंट्स लिफ्ट होता है, by lift. We climbed up by lift. pour avoir मतलब in order to have a panoramic view. Guys, do you know what is panoramic view? Yes. है ना, आईफोन यूजर्स को पता रहेगा, पर अभी तो आई गेस सब में आ गया है, सैमसंग में भी आ गया है. आई गेस सबसे पहले ये आईफोन में आया था, पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी. तो स्टूडेंट जब तुम लोग ऊपर चले जाओगे तुम लोग को एकदम पूरे सिटी का एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा, इतना सही सिटी है. ओके, एक वाइड व्यू मिलेगा. सो वी क्लाइम्ड अप बाय लिफ्ट इन ऑर्डर टू हैव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी. दिस टाइम सेकंड फ्लोर. बच्चे लोग बताओ सेकंड फ्लोर पे क्या है, रीड करो आगे. सेकंड फ्लोर पे क्या है बताओ. या सो सेकंड फ्लोर पे स्टूडेंट्स क्या है, नूस आवो देशुने. देशुने मतलब टू हैव लंच, तो वी टुक लंच है ना. पासे कंपोज है, सब्जेक्ट और नाउन, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. पासे कंपोज है, इट्स अ न्यू टॉपिक, 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ हमने. पासे कंपोज है. सो वी टुक लंच. बताओ स्टूडेंट्स हम लोगों ने लंच कहाँ पे लिया था, इन अ लग्जरियस रेस्टोरेंट. इन अ लग्जरियस रेस्टोरेंट, और उसका नाम भी दिया हुआ उन्होंने हमको. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप लोग को लर्न करना है नाम को, ल जूल्स वेन. बाय. ओके, तो क्या है स्टूडेंट्स, वी टुक लंच इन द लग्जरियस रेस्टोरेंट ल जूल्स वेन, फुल स्टॉप. सम मॉन्यूमेंट. अच्छा स्टूडेंट्स देखो तुम लोग को रियलाइज हो रहा है आईफिल टावर कितना बड़ा है. आईफिल टावर बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स. उसमें सेकंड फ्लोर के अंदर पूरा एक रेस्टोरेंट है, एंड यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन हैव योर लंच ओवर देयर. ओके, बट जो जिंदगी भर की कमाई ना सब निकल जाएगी एक ही लंच के पीछे. तो थोड़ा संभाल के, थोड़ा पॉकेट वॉकेट लेके जाना. ऐसे बहुत ज्यादा अमीर लोग हो तो उनको नहीं फर्क पड़ता है, बट देन जो मतलब मेरे जैसे लोग रहेंगे, आई डोंट नो यू गाइज. ओके, मैं अगर गया तो मेरे तो फट जाएगी. ओके, सो आई कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट. क्या हुआ, वाह. चलो तो स्टूडेंट्स दिस क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे मॉन्यूमेंट का नाम भी हमको रेस्टोरेंट का नाम दिया हुआ है, ले जूल्स वेन. अब बताओ स्टूडेंट्स ये मॉन्यूमेंट किससे बना हुआ है. दिस मॉन्यूमेंट मेड अप ऑफ आयरन. आयरन ही है ना. सो स्टूडेंट्स देखो वहां पे EN और लिखा हुआ है, EN फेयर का मतलब देखो मैं यहाँ पे फ्रेंच में लिख देता हूँ किसका मतलब मेड अप ऑफ आयरन है. EN फेयर मिला तुम लोग को, और फेयर का मतलब होता है मेड अप ऑफ आयरन. दिस मॉन्यूमेंट मेड अप ऑफ आयरन symbolizes all that is elegant and all that belongs to French. तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, आप लोग खाली इसको लर्न कर लो. क्या लिखा हुआ है कि ये मॉन्यूमेंट किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट्स. एक तो बहुत ज्यादा एलिगेंट है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, प्रीटी है, एंड सेकेंडली इट कंप्लीटली बिलोंग्स टू फ्रांस. ओके, तो हाँ तो मतलब ऑब्वियसली बहुत सेंटेंस वहाँ पे फ्रेंच ही बैठ रहा है. फ्रांस कंट्री में इट बिलोंग्स टू फ्रेंच, मतलब वो लोगों का है. वो लोग ने भी फ्रांस से लिखा है फ्रेंच. तो स्टूडेंट्स कुछ समझा आप लोग को ये क्या हो रहा था, पूरे सेंटेंस के अंदर क्या बोलना चाह रहे थे वो लोग. ओके, काफी ज्यादा आईफिल टावर की तारीफ की हुई है, नथिंग एल्स.
चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग अभी। Castle. Tell you what is next. Let's start with the Versailles. Okay. So the castle of Versailles. Castle. यार पता ही था। ठीक है, ये इधर ऊपर नहीं बैठना है। वो अटे ऊपर ही बैठा मैं। इधर बैठ जा। हां इधर बैठ जा। मैं जा रही हूं। हां दादा बोले दादी को। मैंने फोन करके 2 मिनट में रोए 4-5 मिनट। चलो सो स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करेंगे द कैसल ऑफ वर्साइल। मेरा प्लान था तुम लोग को कैसल ऑफ वर्साइल दिखाने का, थोड़ा सा एक से रुक जाओ अपन उसको। Let's see the images. चलो स्टूडेंट्स देखो तुम लोग को थोड़ा बहुत इमेजेस दिखेगा कैसल ऑफ वर्साइल। कैन यू सी दिस कैसल ऑफ वर्साइल? पुराने जमाने में महाराजा लोग वहाँ पे रहा करते थे। बहुत सही कैसल है, मतलब दिस इज एज गुड एज वी हैव इन जयपुर। अपने यहाँ पे भी रहेगा जयपुर वगैरह में, तो वहाँ पे एकदम बहुत सुपर होता है। और वहाँ पे तो क्या जमीन की तकलीफ नहीं है, दूर दूर तक बड़े बड़े कैसल्स होते हैं एकदम ही। सो इफ यू जस्ट गूगल इट ऑल्सो यू विल लव इट, लव द प्लेस। चलो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स द कैसल ऑफ वर्साइल। यहाँ से शुरू करें। Nous y avons passé une journée entière tranquillement. So again students passé composé यूज हुआ है, subject pronoun conjugation verb avoir plus past participle। तो हम क्या लिखेंगे? We passed there an entire day। हमने एक वहाँ पे पूरा एक दिन बिताया स्टूडेंट्स, entire day। सोचो एक ही जगह पे पूरा entire day बिताया है, कितना सही होगा, कितना बड़ा होगा। We passed there an entire day peacefully tranquillement, ये वर्ड आया था अभी जस्ट। tranquil मतलब peacefully dans la plus splendide des résidences royales, in the splendid royal residence, again superlative degree, in the most splendid royal residences। so shows हमने वहां पे एक पूरा दिन बिताया था in the most splendid royal residences। बहुत बड़े बड़े एकदम महल वगैरह है जहाँ पे राजा महाराजा लोग एक जमाने में रहा करते थे। ठीक है, अच्छा तो उधर क्या क्या स्टूडेंट्स? ले अपार्टमेंट लुक्सियस। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले अपार्टमेंट लुक्सियस? लग्जरियस अपार्टमेंट। एग्जैक्टली। सो वहां पे स्टूडेंट्स लग्जरियस अपार्टमेंट्स है, लग्जरियस अपार्टमेंट्स। उसके बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? लग्जरियस अपार्टमेंट्स के बाद वहां पर मिलेगा आपको ले वास्ट जार्दा मैग्निफिक। या जार्दा मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट gardens। वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे? वास्ट मैग्निफिसेंट गार्डन्स, मैग्निफिसेंट गार्डन्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स फोटो में भी तुम लोग देख सकते हो वहां पे गार्डन्स कितने बड़े बड़े। देखो ये लेफ्ट साइड में नीचे वाला फोटो देखो, इतने बड़े बड़े गार्डन्स एकदम ही, है ना। हमारे यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है इतने गार्डन के अंदर, और 500-600 बच्चे तो खेल ही रहे होते हैं। वास्ट मैग्निफिसेंट गार्डन्स avec des statues and fountains, with some statues and fountains। ठीक है, चलेगा। फाउंटेन्स तो अपने यहाँ पे भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चॉकलेट मेरे पास किसी पास चॉकलेट है? जस्ट किडिंग। नेक्स्ट इज कल तुम लोग नहीं आओगे ऐसा बोलो। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ए ना oubliez pas la galerie de glace। नाउ स्टूडेंट्स देखो, देयर इज वन मोर न्यू प्लेस, ला गैलरी दे ग्लास लिखा हुआ है वहां पर। चलो मैं तुम लोग को अभी वो भी प्लेस बताऊंगा। 2 मिनट पहले अपन या एक प्लेस, इसके अंदर पूरा मिरर है। हम लोग, मैं ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं तुम लोग को वो फोटो बताऊंगा गूगल पे। फाइन, तो एंड लेट अस नॉट फॉरगेट। अगेन स्टूडेंट्स ये कौन सा टेंस है? इंपेरेटिव है, कमांड दिया हुआ है। let us not forget and let us not forget the gallery of glass। it's a proper noun, so let's not translate exactly। the historical place where
once signed the Treaty of Versailles in 1990. क्या ये पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल अपने कोई हिस्ट्री वगैरह में? हाँ सर. Okay. So let's not forget the Galata Glass, the historical place where one signed the Treaty of Versailles in 1919. हाँ? क्यों? जा चलेगा. सुन बाहर से दरवाजा बंद करना ताकि ये बाहर नहीं निकले. ठीक है? चलो. Let's start students. अभी इसको फिनिश करेंगे. हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग को गैलरी द ग्लास देखना था, राइट? क्या हो बेटा? नहीं सुना जा. वापस बोल बेटा. वो अपने 11th स्टैंडर्ड की बुक में स्टार्टिंग में 0 चैप्टर के पहले था, लुईस 16 एंड एवरीथिंग. देखो स्टूडेंट्स, गैलरी द ग्लास के फोटोज भी तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. आई गेस इन सब में सब कांच वाच का बना हुआ है काफी ज्यादा. बराबर. चलो नील, इज दैट ओके? आपको समझ आ रहा है? फोटोज विल हेल्प यू टू इमेजिन. ओके. चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. नाउ गोइंग विद द लास्ट पैराग्राफ. द म्यूजिक रेविन. सो इट्स द नेम ऑफ अ म्यूजियम. Okay. So going with the last paragraph students, the music Ravine. The museum Ravine. चलो ऑनलाइन बच्चों आप लोगों को सब सुनाई दे रहा है ना अच्छे से एकदम? हाँ सर. देखो स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर के अंदर है ना एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है. कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज अ लिटिल ड्राई पार्ट बिकॉज ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट गिव यू इंग्लिश ट्रांसलेशन. मेरे पास सच्ची बोलूं ना तो लिखा हुआ भी है इंग्लिश ट्रांसलेशन सारा का सारा, लेकिन देन इट वोंट मेक एनी सेंस. मैं डायरेक्टली तुम लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा हुआ दे दूंगा. तो ये थोड़ा सा ड्राई पार्ट होता है. वंस वी कम ऑन ग्रामर पार्ट, वी डू द एक्सरसाइज सॉल्विंग, इट्स रियली मोर इंटरेस्टिंग एंड फन. उसको करें जो करना. ये क्या कर रहा है? चलो लेट्स स्टार्ट. द म्यूजिक ग्रेविन. स्टूडेंट्स क्या करेंगे? द म्यूजियम ग्रेविन इज वन ऑफ द मोस्ट interesting place to visit in Paris. तुम लोग को लग रहा है स्टूडेंट्स ये फिर से एक सुपरलेटिव डिग्री आया ऐसा कुछ? Do we have Sakshi in the meeting? Sakshi? Yes sir. Yes sir. Okay, Sakshi आपकी आवाज अब भी सुनाई दी. कब से कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप? या वो मैं लिख रही थी ना इसलिए. No problem. चलो. So students, क्या म्यूजियम ग्रेविन is one of the most interesting place to visit in Paris. Full stop. इसी मतलब year. अच्छा, सत्रू मतलब situated. Here is situated some statues made up of सी लिखा ना, सी मतलब वैक्स होता है स्टूडेंट्स, मेड अप ऑफ वैक्स. तुम लोग कभी लोनावाला गए हो स्टूडेंट्स? लोनावाला में भी है वैक्स म्यूजियम है वहां पर. तो बस वैसा ही स्टूडेंट्स वैक्स म्यूजियम जैसा कुछ है. अच्छा देखो स्टूडेंट्स, ऊपर देखना, जब भी EN के आगे कोई मटेरियल आएगा उसको मेड अप ऑफ बोलेंगे. इसके पहले कैन यू सी ऊपर भी था ENFER फेयर. EN फेयर आएगा तो स्टूडेंट्स वो क्या था वहां पर? मेड अप ऑफ आयरन था. यहाँ पे ENFER है, EN सी है, उसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है? वो मेड अप ऑफ वैक्स है. इज दैट ओके? चलो आफ्टर दैट, so students क्या है? Here is situated some statues made up of wax of the famous personalities. तो किसके statues है स्टूडेंट्स? Of the famous personalities of all the fields. तो स्टूडेंट्स सारे fields के जो मेन फेमस पर्सनैलिटीज हैं. अच्छा कोई सच्ची में ऐसा है जो अपने लोनावाला के वैक्स म्यूजियम में गया हुआ है? ओके. तो किसके स्टैचूज आप लोगों ने देखे हुए बताओ? अमिताभ बच्चन वगैरह थे, माइकल, नरेंद्र मोदी वगैरह का भी था ना? है. तो स्टूडेंट्स तो क्या देखेंगे हम लोग? काफी सारे लोगों के होते हैं, सब फेमस पर्सनालिटीज वगैरह के होंगे वहां पर. चलो एक सेकंड ना. इसके लिए
16 बॉल में 21 नहीं, एक सेकंड, चलो। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे इसको। ऑफ ऑल द फील्ड्स, चलो। बाद में स्टूडेंट्स लिखा है फेथ दे फोटो, मतलब क्लिक सम फोटोज विद द जनरल स्टूडेंट्स। चार्ल्स द गॉल है नाम, आपको बताओ एग्जैक्टली कौन है चार्ल्स द गॉल। स्टूडेंट्स ने एक मिलिट्री पर्सन था, मिलिट्री पर्सन, और उसने ना जब आई गेस आई डोंट रिमेम्बर 1869 79 या कुछ ऐसा था, जब है ना वो लोग ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ना ही वाज द वन हु वाज लीडिंग द एंटायर मिलिट्री। तो उस समय वो बहुत फेमस था। उसके बाद है ना उसके नाम पे एक एयरपोर्ट वगैरह भी बना। क्या हुआ? प्रेसिडेंट नहीं था बेटा, कौन था? ओके। तो उसके नाम पे ना पूरा एक एयरपोर्ट बना हुआ है पेरिस के अंदर, चार्ल्स द गॉल। वैसा अपने यहाँ पे जैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह वैसा है, तो वैसा सब नाम है वहां पर, चार्ल्स द गॉल। और द प्रेसिडेंट, तो स्टूडेंट जो भी प्रेसिडेंट रहते हैं उन सबके वैक्स होते हैं वहां पर। ऑफ द रिपब्लिक फ्रेंच, rencontre the numerous stars du cinéma. So rencontre मतलब to meet other students, meet numerous stars of cinema, or fait une passe, or pass by. Fait une passe is basically meet the or meet with the footballers. या तो स्टूडेंट्स तुम लोग जाके वहां पे फुटबॉलर्स वगैरह को मिल सकते हो। और नाम दिया हुआ है मेसी, लियोनेल मेसी, ओके। एंड और स्टूडेंट्स ये जो एम्बापे है ना, दैट इज अ फ्रेंच फुटबॉलर, ओके। हाँ सर, पेरिस के लिए खेलता है। या लियोनेल मेसी इज नॉट अ फ्रेंच फुटबॉलर, पर उसका फिर भी स्टूडेंट्स वहां पर क्या है, वहां पे स्टैचू वगैरह है। चलो, वो पूवे विव्र वो रहे। तो स्टूडेंट्स फाइनल क्या बोला? यू कैन लीव योर ड्रीम्स, इन द म्यूजियम ग्रेविन। तो स्टूडेंट्स तुम लोग अपने अरमान पूरे कर सकते हो म्यूजियम ग्रेविन में जाकर। इज दैट ओके? बिकॉज तुम लोग को सारे फेमस पर्सनैलिटीज को मिलने मिलेगा, तुम लोग को सब जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सबको मिलने मिलेगा, इसीलिए वो लोग ने ऐसा बोला दैट यू कैन गो देयर एंड यू कैन लीव योर ड्रीम्स। चलो स्टूडेंट्स मैं रब कर लूं फिलहाल, मैंने जो भी लिखा हुआ है भाई बहुत कम दिख रहा है। चलो, आई वांट समबडी टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोटो एंड देन पुट इट इन द ग्रुप। सर बैकग्राउंड वाइट कर दो ना। बैकग्राउंड को वाइट करना है, और वाइट बैकग्राउंड के लिए मैं कहाँ जाऊँ बेटा? इतना दे दे, बहुत है, जितना दिखना उतना दिख जाएगा इतने में, है ना? आई गेस सब कुछ दिख ही रहा है। चलो, आई होप समबडी हैज टेकन स्क्रीनशॉट। मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ। ग्रुप पे डालना है? हाँ, ग्रुप में प्लीज डाल दो ना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रेड कलर से, je vis pour voyager, I live to travel, and I travel for living, so I live to travel and I travel to live। मैं जी रहा हूँ घूमने के लिए और मैं घूम रहा हूँ जीने के लिए। वाह, वेरी डीप। क्या हुआ बेटा? चलो स्टूडेंट्स देखो, अगर तुम लोग कहीं घूमने जाओ तो ये सारी चीजें तुमको लेके जानी है, याद रखना, कहीं तुम भूल ना जाओ, इसीलिए टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, ओके। और पार्ट मतलब वहां पे अगर लिखना तो लिख लो वन लीव्स। तो बच्चों अगर तुम्हारा कोई भी प्लान है घूमने फिरने जाने का, तो मेक श्योर दैट यू ओपन योर फ्रेंच टेक्स्ट बुक एंड जस्ट गो थ्रू ऑल दिस आइटम्स। हैव यू कैरीड दिस और नॉट? सो स्टार्टिंग विद द डॉक्यूमेंट्स, सबसे फर्स्ट टिकट्स। सर ऑन पार्ट का मीनिंग क्या है? ऑन पार्ट मींस वन लीव्स। पर देखना होगी जरा एक बार। वन लीव्स है क्या? हाँ, वो चाबी से डोर को ठोक कर रहे हैं। चलो, वन लीव्स, टिकट्स है, पासपोर्ट है और वीजा है।
चलो स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर टिकट्स है, पासपोर्ट है, वीजा है, यू गॉट दैट. ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चे लोग, तुम लोग या तो ट्रेन से जा सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट, ओके, डोंट वरी, आई हेल्प यू आउट. ट्रेन से जा सकते हो, लावियो मतलब प्लेन से भी जा सकते हो, लावियो प्लेन से जा सकते हो. इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लर्न करना है सारा. वॉच्यूल मतलब कार से भी ट्रैवल कर सकते हो, कार. और स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू, ट्रेन एट द गार, आला गार मतलब एट द स्टेशन. तो स्टूडेंट्स ट्रेन स्टेशन पे आएगी, ठीक है, इफ इन केस यू डोंट नो. सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लेन आला एयरपोर्ट मतलब एट द एयरपोर्ट. ऐसा नहीं कि स्टेशन पे आके प्लेन का वेट कर रहे हो. और इन सिटी, अगर सिटी के अंदर स्टूडेंट्स घूमना है तो बस है, मेट्रो है. अच्छा, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बस कहाँ पे आएगी? आज एट द व्यूज मतलब बस स्टॉप पे आएगी. देख पल देख ले, बस स्टॉप पे ही आएगी बस. क्या हुआ? 5 मिनट, 5 मिनट खाली. चलो नेक्स्ट इज आला स्टेशन द मेट्रो, एट द स्टेशन ऑफ मेट्रो. और अगर बाय चांस इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर मेट्रो, तो बेटा मेट्रो स्टेशन ही जाना. कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, ले वेटमो. वेटमो मतलब क्लोथ्स और एक्सेस नहीं है, एक्सेसरीज मतलब एक्सेसरीज. सर वेटमो मतलब क्लोथ्स होता है, एक्सेसरीज मतलब एक्सेसरीज होता है. इज दैट ओके? नीचे नहीं करना, ऊपर करना. बस चलो नेक्स्ट इज पुरलुई. देखो लुई मतलब लड़का है, लुई मतलब हिम है, ओके. और नीचे पूर एल भी एक लिखा हुआ है, वो लड़कियों के लिए. तो फिलहाल हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे बॉयज लोग क्या क्या ट्रैवल में लेके जाएंगे. लास्ट शमीज इज शर्ट, शमीज शर्ट है. पेंटालॉ इज पैंट, है ना. ये जो पैंटलून्स है ना, इट इज देयर फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पेंटालॉ, मतलब पैंट्स होता है. जो लॉन्ग पैंट्स पहनते थे ना पहले, उस जमाने में उसको पैंटलून्स बोलते थे वो लोग. क्या हुआ? अपना टाटा बिरला. अच्छा बिरला, अरे ये वर्ड डिराइव हुआ उसमें से, फ्रेंच वर्ड में से लिया हुआ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. टी शर्ट, शमीज का मतलब क्या था? शमीज मतलब शर्ट्स. बस और नहीं है. ओके, आफ्टर दैट टी शर्ट होता है, शॉर्ट्स होता है, ब्लूजो और क्वीर. ब्लूजो और क्वीर मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? ब्लूजो मतलब कोट होता है, क्वीर मतलब लेदर होता है. देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग को चाहिए तो लिख लो. EN प्लस मटेरियल क्या होता है? EN के आगे मटेरियल आएगा तो उसका मेड अप ऑफ बोलते हैं, मेड अप ऑफ. तो यहाँ पे हमको अगर सपोजिंग फॉर एग्जांपल क्वीर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? मेड अप ऑफ लेदर, मेड अप ऑफ लेदर. इज दैट ओके? इसके पहले सिर दिया था तो हमने क्या लिखा था? मेड अप ऑफ वैक्स, बराबर. अगर कॉटन दिया है तो बच्चे लोग क्या होगा? मेड अप ऑफ कॉटन. मेड अप ऑफ कॉटन. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो बाद में नीचे क्या दिया हुआ है? ला वेस्ट मतलब जैकेट जैसा कुछ होता है, वेस्ट इज जैकेट. मोंतो इज कोट, मोंतो कोट. क्रावेट इज टाई, क्रावेट इज टाई. यस बेटा. सर मोंतो कोट है तो ब्लूसॉन क्या है? बेटा ब्लूजो भी वैसा ही कुछ है सब. ब्लूजो, व्हाट इज ब्लूजो? बेटा सब सेम ही है. ब्लूजो मतलब भी वो कोट जैसा ही होता है, जैकेट जैसा या कोट जैसा ही होता है. क्रावेट इज टाई. बास्केट मतलब शूज होता है. क्या हुआ? क्या हुआ? मोंतो के पहले वैसे का मीनिंग क्या है? जैकेट. चलो बास्केट मतलब शूज होता है. शॉर्सेट और कॉटन, शॉर्सेट मतलब कॉटन सॉक्स, कॉटन सॉक्स. लूनेट द सोलेर मतलब सनग्लास. लूनेट द सोलेर का मतलब क्या होता है? सनग्लास. ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी लड़कियों के लिए देखेंगे. ले वेटमो एक्सेसरीज पूरे एल. जूप, जूप मतलब सबसे पहले स्कर्ट होता है. शेमिजियर मतलब टॉप होता है. ब्लू जीन्स मतलब जीन्स, ब्लू जीन्स. पूल इज स्वेटर, पूल मतलब स्वेटर होता है. शापो, व्हाट इज शापो? हैट होता है, हैट या कैप. सेंचुर मीन्स बेल्ट, सेंचुर इज बेल्ट. रॉब और स्वा मतलब या सो रॉब मतलब ड्रेस होता है, मेड अप ऑफ सिल्क ड्रेस, सिल्क ड्रेस. वापस EN प्लस मटेरियल आया बच्चों लोग, EN प्लस मटेरियल. मायो,
ओके, इट्स नॉट अ बैड वर्ड, मायो। ओके, मायो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्विम सूट। ओके, मायो। ओके सर मायो का मतलब? स्विम सूट, स्विमिंग सूट। ओके, नेक्स्ट इज लेशार्प। एशार्प मींस स्कार्फ। अच्छा, ले शॉज्यूर आ तालो। तालो मतलब हिल्स होता है, शॉज्यूर मतलब शूज होता है। तो अब तुम लोग क्या होगा? शूज, हिल शूज। बीजू मतलब ज्वेलरीज, बीजू मतलब ज्वेलरीज होता है। हो गया, वेरी गुड। और सर फर्स्ट वर्ड? क्या फर्स्ट वर्ड? तो बीजू क्या था? बीजू मतलब ज्वेलरी होता है बच्चे लोग। और ले जीव हाँ, है ना सर? पानी पीना है। एनीबॉडी हैज वाटर? जा पानी लेके आ। चलो, इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो अभी लास्ट एक लेफ्ट हैंड साइड पे बचा है, लाट्रूज द टॉयलेट। अच्छा, उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? द पाउच ऑफ टॉयलेटरी आर्टिकल्स। टॉयलेटरी आर्टिकल्स मतलब साबुन वगैरह सब होता है। ओके, फर्स्ट इज ला सावो। सावो मतलब सोप, ला सावो सोप। ला डेंटिफ्रीज मतलब टूथपेस्ट, ला डेंटिफ्रीज टूथपेस्ट। ल है ना, ल तो मैस्कुलिन नाउन है। ला ब्रॉस आ दो मतलब टूथब्रश, ला ब्रॉस आ दो टूथब्रश। ला सर्वियत, सर्वियत मतलब टॉवल, ला सर्वियत मींस टॉवल। ला पेनियर, पेनियर इज comb। और लास्ट इज शैम्पूइंग, इज शैम्पू। ओके, और चाहिए? चलो बच्चे लोग, चलो ट्राई करो। पेज नंबर 49, योर टर्न, ट्राई ऑन योर ओन। चलो, catch. Starting with the first one, dash and dash are two touristic places in Paris. चलो स्टूडेंट्स, तो तुम लोग कोई भी दो चीज लिख, लातूर ईफेल लिख लो, दिया हुआ है पेज नंबर 48 पे, देखो लातूर ईफेल दिया हुआ है, वो लिख लो। और ला म्यूजिक रेविन लिख सकते हो, या तो ला शातो द वर्साइल लिख सकते हो, कोई भी दो प्लेस लिख दो चलेगा। ऑनलाइन बच्चे लोग, इज दैट ओके और यू वांट मी टू राइट द स्पेलिंग? पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है, चलेगा ना बच्चे लोग? चलो आहद, आपको समझ रहा बेटा? आहद, यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज डैश ए यून रेसिडेंस रॉयल प्रे द पारी। डैश इज अ रॉयल रेसिडेंस नियर पेरिस। बताओ बच्चे लोग क्या होगा रॉयल रेसिडेंस इन पेरिस? ल शातो द वर्साइल लिखो, ल शातो द वर्साइल, ल शातो द वर्साइल। इट्स अ रॉयल रेसिडेंस नियर पेरिस। थर्ड वन, the restaurant, the Luxe, the luxurious restaurant at second floor of the Eiffel Tower is called as? Eiffel Tower के ऊपर सेकंड फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट है उसका नाम क्या है? Le Jules Verne। चलो लिखो आप Le Jules। It's all given on page number 48. That is why I'm not writing the spelling. Le Jules Verne। Fourth one. Dash est le monument le plus connu du monde. Dash is the most famous monument of the world. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Okay, students? La Tour Eiffel. And going with the last one, बच्चे लोग, and going with the last one, les chaussures sont en dash. The shoes are made up of dash. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्यूर लिख रहा हूँ, CUIR। क्यूर मतलब लेदर होता है, चलेगा ना? शूज लेदर के होते कि नहीं होते बच्चे लोग? ठीक है आर्यन, यू कांट डू दैट इन द क्लास। चलो सो स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद क्या करेंगे? पेज नंबर 50 का जो पूरा का पूरा पार्ट है, आई विल बी सेंडिंग यू गाइज आंसर्स। मेरे पास लिखा हुआ ऑलरेडी आंसर्स, मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, आप लोग उसको घर से कॉपी करके आओगे
और जो बच्चे YouTube पे वीडियो देख रहे हैं आप लोग को मुझे पर्सनली मैसेज करना होगा। मैं लिंक के ऊपर नहीं डिस्क्रिप्शन में या नहीं डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ। इफ यू वांट द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 50 तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको सेंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।